is now on the other story. Rescue operations are underway in Uttarakhand as the operations continue following the cloudburst and landslide in Uttarkashi. Situation continues to remain grim on the ground as dog squads have been deployed in the latest visuals coming in from the mudslide affected Harsil and the other villages. Viewers, as you can see even in the pictures, the dog squad teams and the rescue operations are underway. Shubham Kotnala, my colleague, joins me with the latest update. What is the latest update now, Shubham, as there are different security agencies and also in fact the police trying to grapple with the aftermath of the Uttarkashi cloudburst, where Harsil and other Dharavi villages that have been washed away completely. जी बिल्कुल, बात करें तो लगातार जो है आज छठवें दिन भी रेस्क्यू कार्य जारी है। लगातार सुबह से ही 6:30 बजे के बाद से हेलीकॉप्टर्स का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र जो है तारा घाटी से लोगों को रेस्क्यू के मार्गी हेलीपैड और जोली ग्रांट अन्य तमाम हेलीपैड पे निचले के इलाकों में छोड़ रहे हैं, जहाँ से लोग अपने आ रहे हैं। एक विशेष बात यह है कि जो रोड कनेक्टिविटी है उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो गंगनानी का पुल, जो 30 मीटर का हिस्सा था वो बह चुका था। उसके बाद से लगातार हेली ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही थी। हेली ब्रिज का पूरा फ्रेम भी बना दिया गया था, बीती रात को ही बना दिया गया था। आज उस फ्रेम को दूसरी ओर पहुंचा दिया गया है। फिलहाल उसमें नीचे चलने के लिए प्लेटें लगाई जा रही है। ये प्लेटें लगाने का कार्य भी करीब 80% पूरा हो चुका है। इसमें 20% काम और बाकी रह गया है, जो करीब माना जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद से ये पूरा ब्रिज जो है विधिवत तौर से खोल जाएगा, क्योंकि इसमें ITBP की टीम और सेना की टीम। All right, Shubham, continue to stay with us. Now, what we are learning further is that the Uttarakhand administration has also resumed air operations from Uttarkashi's Matli helipad to the disaster-affected areas of Dharali and Harsil. As rescue operations enter their 6th day, this comes after a slight improvement in the weather conditions. Air operations through the helicopters continue for the 3rd consecutive day. Shubham, the air operations have resumed as a department of, the administration has also decided in Uttarkashi to resume the air operations. The rescue operation enters its 6th day. What more inputs are you able to gather? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से मौसम को देखकर भी जो है पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस वक्त का मौसम साफ है और लगातार जो है एयर सेवा से लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक रेस्क्यू किए गए लोगों की बात करें तो उनकी संख्या करीब 2611 बताई गई थी। बीती रात तक का यह आंकड़ा है और इसके बाद क्योंकि अभी तक करीब दोपहर का समय आ चुका है, तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा जरूर बढ़ा होगा। जैसे ही नया आंकड़ा आता है तो उससे हम जरूर अपडेट करवाएंगे। फिलहाल इस तरह की स्थिति है, लगातार स्थितियों में सुधार भी देखा जा रहा है। जो बिजली और पानी की कनेक्टिविटी थी, जो हर्सिल ऊपर के इलाके पहुंचानी थी, क्योंकि वो बाधित चल रही थी पूरी तरह से, वहां पर उनको जो है UPCL की टीम द्वारा वायर भी पहुंचाए गए हैं, इलेक्ट्रिकल वायर। साथ ही साथ एक्सटर्नल तौर पर वहां पर जनरेटर पहले ही पहुंचा दिए गए हैं। 2 जनरेटर हर्सिल क्षेत्र में है, 1 जनरेटर धराली क्षेत्र में है। All right, Shubham, now stay on with us. As Uttarakhand government has also stated in a statement that the Uttarkashi district magistrate is constantly taking stock of the assurance of all the necessary arrangements, including the basic amenities like electricity, water, road network, connectivity in Dharali and Harshil. The administration has also stated that the people evacuated from the disaster affected areas are being kept safe in the safe relief camps, where they are provided with all the necessary facilities, including food, water and primary health services. The district magistrate in Uttarkashi is providing all the relief material to the 2 villages of Dharali and Harshil. Shubham, what are you tracking from the ground on this input? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो लोग वहां पर अभी सब मौजूद हैं ऊपर के इलाकों में, और क्योंकि रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से नहीं पा रहे हैं,
इसलिए उनको वहां पर जो है खाने की पूरी फैसिलिटी है, खाने की, पीने की, साफ सफाई की सभी सामग्रियां वहां पहुंचाई गई है। जहाँ ड्राई राशन वहाँ दिया गया है, बिस्कुट नमकीन समेत तमाम चीजें। वहीं जो है आटा, दाल, चावल और तेल, मसाले, ये सब चीजें वहाँ पहुंचाई गई है। साथ ही साथ वहाँ पर गैस सिलेंडर भी जो है कल तक 25 से 30 गैस सिलेंडर वहाँ पहुंचाए जा चुके थे, जिससे कि वहाँ लोग ताज़ा खाना बनाकर खा सके, जिससे कहीं ना कहीं उनके, क्योंकि ऊपर का इलाका है, ठंडा इलाका है, तापमान नीचे के मुकाबले काफी कम रहता है, तो इसलिए वहाँ पर लोगों के ताज़ा खाने की व्यवस्था की गई है, स्वच्छता की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम चीजें जो उनको आवश्यकता लगती है वो सभी जो है एयर सेवा के माध्यम से वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। All right, Shubham, now stay on as we are also learning more updates. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has flagged off the vehicles carrying the rehabilitation and relief material to the disaster affected areas of Uttarkashi from the Chief Minister's residence in Dehradun. All right, Shubham, share more details on this very visual that we can see on our screens. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has flagged off the buses carrying rehabilitation material. ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इनको हवाई सेवा के माध्यम से माकी हेलीपैड, चिन्याली शोड़ और पॉलीग्रांट पहुंचा जा रहा है। उनको वहां पर जो है बस सेवा के माध्यम से जो है परिवहन की ओर से जो उपलब्ध करवाई गई है, वहां से उनको अपने गंतव्य की ओर पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं जो अतिरिक्त परेशानी है उससे बचे रहें। और ये सेवा निरंतर ही जो है लगातार चलती आ रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो ये सेवा जो है फिलहाल लोगों के लिए विशेष तौर पर रखी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर भी लगातार उनके शेयर किए जा रहे हैं, जिससे कि वो जो उनके परिजन हैं, उनके साथ संबंधी है, पहचाने लोग हैं, उनका संपर्क कर सकें। और all right, Shubham, continue to stay on as tourists and eyewitness also continue to share their experiences following the Uttarkashi cloudburst. While speaking to the media, tourists in fact shared that they were stuck in Gangotri for the 5th of the August due to a major roadblock with no network or connectivity or the facilities around for 3 days without knowing when the road would reopen. Let's now listen into that as well. गंगोत्री धाम से हमको 5 तारीख को हम रुका गए थे, तो हमारा ना नेटवर्क था ना कोई सुविधा थी। पर बाद में प्रशासन ने हमें बताया कि धराली में बादल फटने से मतलब सारा मलबा आ गया है, तो रास्ता बंद है। तो कब खुलेगा ये तो हमको भी नहीं मालूम। और उन्हीं के कारण हम वहाँ पे गंगोत्री धाम में रुके 3 दिन, और वहाँ से 3 दिन के बाद में उनकी सुरक्षा के अंदर में हम हरसिल तक आए। हरसिल से फिर हेलीकॉप्टर से हमको देहरादून उतारा, और उनके अंडर में खाना पीना रहना सारा फ्री था। और देहरादून उतार के यहाँ तक ऋषिकेश तक उन्होंने हमें सुरक्षित छोड़ा है। वो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करा और हमें इतना सहयोग दिया। All right, viewers, on that note, it's time to slip into a short break with more news and updates on the other side. Stay tuned.